નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, શ્રીમતી એમ કે પટેલ હાઈસ્કૂલ અને શ્રીમતી એ એસ જે પટેલ હાયર સેકન્ડરી સ્કૂલ, ધોરણ 9, વિષય હિન્દી, કૃતિ નંબર 5, સ્વરાજ્ય કી નીંવ અર્થાત સ્વરાજ્યનો પાયો. અને એનું જે સ્વરૂપ છે એ સ્વરૂપ એકાંકીનું છે અને એના જે સર્જક છે એ વિષ્ણુ પ્રભાકર છે. વિષ્ણુ પ્રભાકરની છબી તમે અહીં જોઈ શકો છો. આ જે સર્જક છે, કૃતિના સર્જક, એનો ફોટો છે વિષ્ણુ પ્રભાકર. હવે તમને એ વાત કરવાની કે આ કૃતિ જે છે એનો મુખ્ય ઉદ્દેશ શું છે, શું કહેવા માંગે છે? તો ભારત માતાને આઝાદી અપાવવા માટે ઘણા બધા લોકોએ પોતાના જીવન આપ્યા. એ બલિદાનથી, એ લોહીથી આ ભારત માતાની આઝાદી રૂપી વૃક્ષ સિંચાયું છે. તો એમાં સ્વરાજ્યનો પાયો, સ્વરાજ્ય કી નીંવ, એનો પાયો કોણ બન્યું એની વાત આ કૃતિની અંદર કરવામાં આવી છે. એટલે કે જ્યારે પ્રથમ સ્વતંત્રતા સંગ્રામ થયો ઈસવીસન 1857માં, તો 1857ની અંદર મહારાણી લક્ષ્મીબાઈ ઉર્ફે મનુબાઈ ઉર્ફે મણિકર્ણિકા, એમણે જે ત્યાગ કર્યો અને એમણે અંગ્રેજો સામે સંઘર્ષ કર્યો એનું વર્ણન છે. એટલે તો પેલું કહ્યું છે કે બહુત લડી મર્દાની વો તો ઝાંસી વાળી રાણી હતી. અને સ્વતંત્રતા પ્રાપ્તિ માટે સ્વરાજ્યનો પાયો રચવામાં સ્ત્રીઓની પણ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા હતી. આ એકાંકીના પાત્રો જે છે એ કુલ 6 પાત્રો છે: લક્ષ્મીબાઈ, જુહી, મુંદર, રઘુનાથરાવ, તાત્યા, સેનાનાયક. તો આ જે પાત્રો છે અને એ સિવાયના ઘણા બધા, એ પાત્રોએ સ્વરાજ્યનો પાયો બનવામાં પોતાનું જીવન આપ્યું છે. અને એ જેમના ત્યાગ, તપસ્યા અને બલિદાનથી ભલે જે તે વખતે સ્વરાજ્ય ન મળ્યું પણ તેનો પાયો તો રચાયો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ભારત માતાની આઝાદી માટે સ્ત્રીઓએ પણ જે ભૂમિકા ભજવી, એમણે પણ સ્વરાજ્યનો પાયો રચવામાં પાયાના પથ્થરરૂપ બન્યા. એના ત્યાગ, બલિદાન, તપસ્યા અને સંઘર્ષ, એનું સ્વરૂપ વિષ્ણુ પ્રભાકરજી આ એકાંકીની અંદર આપ્યું છે. ને અહીં મહારાણી લક્ષ્મીબાઈની ઓજસ્વી વાણી, મુંદર અને જુહી એના પરાક્રમો અને તાત્યા જે છે તો એની સૈનિકો સહિત અંગ્રેજો સામે લડવાની જે તાકાત છે એની વાત આ એકાંકીની અંદર કરી છે. તો હું અહીં પાત્રોના નામ કોણ બોલે છે એવી રીતે નથી કહેવાનું, પણ માત્ર એનું સરસ રીતે વાંચન કરવાનું છું, જેથી કરીને તમને ખબર પડે કે એનો અર્થ શું છે. વચ્ચે વચ્ચે સમજાવીશ તો એવું થશે કે આ જે કૃતિ છે એનું કૃતિત્વ અને એકાંકીની ઓજસ્વી ભાષા મારી જશે. તો જુઓ, કુલ 6 પાત્રો. रंगमंच पर युद्ध भूमि का दृश्य अंकित किया जा सकता है कि केवल आ स्टेजिबिलिटी करी शका है. कैंप कहीं पास ही लगा हुआ है. छावनी, महारानी लक्ष्मीबाई के तंबू का एक भाग दिखाई देता है. पर्दा उठने पर महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही के साथ उत्तेजित अवस्था में मंच पर प्रवेश करती है. दोनों लाल कुर्ती के सैनिकों की वेशभूषा में है. આ પહેલું દ્રશ્ય છે કે સ્ટેજ એવું છે કે સૈનિકોની છાવણી દેખાય છે અને જોહી ને મહારાણી પ્રવેશ કરે છે. હવે મહારાણી લક્ષ્મીબાઈ, मेरे देखते ही देखते क्या से क्या हो गया जूही. झांसी, कालपी, ग्वालियर कहाँ गई, परंतु मंजिल है कि पास आकर भी हर बार दूर चली जाती है. स्वराज्य की बातें देखती हूँ पर दूसरे ही क्षण मार्ग में हिमालय अड़ जाता है. उसे पास करती हूँ तो महासागर की डरावनी लपटे थपेड़े मारने लगती है. उससे जूझती हूँ तो नाविक सो जाते हैं. देखो जूही, उधर क्षितिज पर देखो, कैसी लपलपाती हुई लपटें उठ रही हैं. सारा आकाश धूम घटाओं से छाया हुआ है.
प्रलय की भूमिका है, लेकिन राव साहब है कि रक्तमंडल की छाया के ऐशो आराम में मशगूल है। आवेश में आते आते सहसा मौन हो जाती है। जूही कुछ कहने के लिए मुंह खुलती है कि महारानी फिर बोल उठती है, जूही जूही, मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। અને એ જ વખતે આપણને ખબર પડે કે मैं मेरी झांसी कभी नहीं दूंगी, ये सूत्र बने छे। लेकिन झांसी हाथ से निकल गई जूही सहसा तीव्र होकर, नहीं नहीं, झांसी हाथ से नहीं निकली, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, मैं अकेली हूं, लेकिन उससे क्या, मैं अकेली ही झांसी लेकर रहूंगी। तब जूही कहती है कि कौन कहता है कि आप अकेली हैं महारानी, आप भी तो गीता पढ़ती हैं, फिर यह निराशा कैसी। मैं निराश नहीं हूं, मैं जानती हूं कि मैं झांसी लेकर रहूंगी। जब तक हमारे समाज में छू अछूत और ऊंच नीच का भेद नहीं मिट जाता, जब तक हम विलास प्रियता को छोड़कर जनसेवक नहीं बन जाते, तब तक स्वराज्य नहीं मिल सकता। जुओ, ज्यां सुधी एकता नहीं स्थापाय त्यां सुधी आपने राज्य नहीं मिले। वह मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से। लेकिन महारानी, उन्होंने यह भी तो कहा था कि स्वराज्य की प्राप्ति से बढ़कर है स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना। सफलता और असफलता दैव यानी कि भाग्य के हाथ में है, लेकिन नींव के पत्थर बनने हमें कौन रोक सकता है। यह हमारा अधिकार है कि भाई पायाना पत्थर तो बनिए। लक्ष्मीबाई मुस्कुरा कर कहे, शाबाश मेरी कर्नल, कुछ लोगों से मुझे यही आशा है, जिस स्वराज्य की नींव तुम जैसी नारियां बनने जा रही हैं वह निश्चय ही महान होगा। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वह मेरे जीवन काल में आता है या नहीं आता, लेकिन मुझे यह बात का दुख अवश्य है कि हमारे पास शक्ति है फिर भी हम दुर्बल हैं, हमारे पास तात्या जैसे सेनापति हैं फिर भी हमारी सेना में अनुशासन नहीं है, हमारे पास ग्वालियर का किला है फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों जानती हो क्यों? जानती हूं महारानी, हम विलासिता में डूब गए। तभी मुस्कुराती हुई मुंदर एक अन्य पात्र प्रवेश करती है। कौन कहता है कि हम विलासिता में डूब गए हैं? विलासिता में डूबे हैं राव साहब, बांदा के नवाब सेनापति तात्या। सहसा, नहीं मुंदर, सेनापति नहीं। ओह समझी, तुम तो उनका पक्ष लोगी ही ना। मैं उसका पक्ष नहीं लेती, लेकिन जो तथ्य है उसको छिपाया नहीं जा सकता। सरदार तात्या राव साहब को अपने तन मन का स्वामी मानते और तुम उनको अपना स्वामी मानती हो। हाँ, मुंदर कहते कि हाँ, जूही कहते कि હું એમને સ્વામી માનું છું, પણ કઈ રીતે? हाँ, मैं उनको अपना स्वामी मानती हूँ और मानती रहूंगी, लेकिन उनसे भी अधिक मैं महारानी को अपना स्वामी मानती हूँ और महारानी से भी बढ़कर मैं अपने देश को अपना स्वामी मानती हूँ। देश के लिए मैं सरदार को भी ठुकरा सकती हूँ, ठुकरा चुकी हूँ। जो स्त्रीओं में पण केवो देशताज छे। हवे जोजो, सकपकाकर एकदम आम बहावरा बनीने, जूही तू तो नाराज हो गई। मेरा यह मतलब नहीं था, मैं तो केवल इतना ही कहना चाहती थी कि जब तूने उन्हें अपना स्वामी मान लिया है तो उन्हें रोकती क्यों नहीं कि भाई एने जगाड़ूंगा थी कि ये लोग अंग्रेजों सामने लड़े। जूही ने उन्हें रोका है मुंदर। मैं जानती हूं, जब राव साहब के कहने पर तात्या इसे नाचने के लिए बुलाने को आए थे तो उनको बुरी तरह दुत्कार दिया था कि हूँ तमारा माटे नहीं नाचूं, वो देश माटे नाचीश। हाँ रानी, मैं स्वराज्य के लिए नाच सकती हूँ, बराबर नाचती रही हूँ, परंतु विलासिता में डूबने के लिए अपनी कला को किसी भी गले की फांसी नहीं बना सकती हूँ। जो
मुझको ऐसा करने के लिए कहते हैं उन्हें मैं ठोकर मार सकती हूँ। અને એ જ વખતે લક્ષ્મીબાઈ દીર્ઘ નિશ્વાસો નાખે છે, ठोकर ही तो नहीं मार सकती जूही, यह दर्द तो हमें कचोट रहा है। अगर ठोकर मार कर हम उनकी मदहोशी दूर कर सकते तो बात ही क्या थी कि આપણે એમને કેવી રીતે જગાડીશું આઝાદી માટે, અંગ્રેજો સામે લડવા માટે। અને એ જ વખતે શું કહે છે, भाई साहब मैं औरों की बात नहीं जानती, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ठोकर मारने को तैयार हूँ और मैं भी तैयार हूँ भाई साहब, चलो हम सब चलकर उनकी नींद हराम कर दें। नहीं मुंदर नहीं, हम उसकी नींद हराम नहीं कर सकते, अब तो दुश्मन की ठोकर ही उनको उस नींद से जगा सकती है। दुश्मन की ठोकर, यह आप क्या कह रही हैं? हाँ जूही, दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई को और भी चौड़ा कर देती है। क्या तुम नहीं जानती कि हम एक दूसरे को किस दृष्टि से देखते हैं? क्या ऐसी स्थिति में मेरे कुछ कहने से शंकाओं की घटा और भी गहरी नहीं उठेगी? भाई साहब ठीक कहती है, शंकाएं अविश्वास पैदा करती हैं, करेंगी, और उस अविश्वास के उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झंकार और भी झनक उठेगी। श्रीखंड और लड्डुओं का जान देने वाले ब्राह्मणों के आशीर्वाद का स्वर और भी तेज हो उठेगा। सहसा कहीं दूर से तोपों का स्वर गूंजता है, और जूही तू अगर तात्या को खोज सके तो तुरंत उन्हें यहाँ आने के लिए कहे कि तात्या ने बोला अब एमनी जरूरियात है। तारे जूही कहे छे, खोज क्यों नहीं सकती? आपको आपकी आज्ञा होने पर मैं उन्हें पाताल से भी खींच कर ला सकती हूँ। जाने को मूर्ति है कि रघुनाथ नाम तेजी से प्रवेश करते हैं। महारानी आपने सुना? क्या रघुनाथ? महारानी, जनरल रोष की सेना ने मुरार के पेशवा की सेना को हरा दिया। खाकर क्या पेशवा की सेना हार गई? पेशवा की सेना हार गई या अच्छा ही तो हुआ, अब पेशवा की आंखें खुलेगी। रघुनाथ अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दो, रोज ग्वालियर का किला नहीं ले सकेगा। मैं जानता हूं कि कभी नहीं ले सकेगा, मैं अभी सेना को कुछ के लिए तैयार करता हूं, केवल आपको सूचना देने के लिए आया था। અને એ વખતે રઘુનાથ રાવ જાય છે, और जूही तुम भी जाओ। सहसा बाहर देखकर, लेकिन ठहरो, शायद सेनापति तात्या इधर ही आ रहे हैं। बाहर देखकर, जी हाँ ये तो सरदार तात्या ही है। सरदार तात्या का प्रवेश होता है। कहिए सरदार तात्या, आज आप इधर कैसे बोल पड़े? भाई साहब, मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूं, पर आपके लिए तो सेवक ही हूं। लक्ष्मीबाई व्यंगमा कैसे, इतने बड़े सेनापति को इस प्रकार एक नारी के सामने झुकते लज्जा नहीं आती? खैर छोड़ो इस बात को, यह तुम्हारी विनम्रता है, लेकिन यह तोपों की आवाज कैसी आ रही है? तोपों केवा वागे छे? कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है? शायद चाटुकारों ने, चापलूसी करना रहा, चाटुकारों में जागीर बांटना अभी खत्म नहीं हुआ है। तात्या कहते हैं, भाई साहब आपको हमें लज्जित करने का पूरा अधिकार है, हम इसी योग्य है, लेकिन जो कुछ हो रहा है वह आप जानती ही हैं। शायद ब्रह्मभोज के उपलक्ष्य में तोपें चल रही है। श्रीखंड और लट्टुओं के लिए शक्कर की कमी तो नहीं पड़ी कि भाई ब्राह्मणों बोलाई ना, तो नहीं चालू, व्यंगમાં બોલે છે। ત્યારે જૂહી કહે છે, सरकार इस बार उनको माफ कर दीजिए। तात्या कहे छे, भाई साहब आप यूं कब तक फटकारती रही, क्या सुधी मैंने शब्दों थी मारशो? तू कहती है अच्छा, लेकिन मुंदर आवे छे। सरकार सेना तैयार है तो मैं भी तैयार हूं। तात्या तुमसे मुझे बहुत आशाएं थी, तुम्हारे रहते यह सब क्या हो गया? सरकार ये स्वामी भक्त है। लक्ष्मीबाई कहे छे, लेकिन आज हमें स्वामी भक्तों की आवश्यकता है, लेकिन आज हमें देशभक्तों की आवश्यकता है। खैर आज भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी बहुत कुछ किया जा सकता है, इसलिए आया हूं भाई साहब। आप जो कहेंगी वही करूंगा, जो योजना बनाए उसी पर चलूंगा। तो जाओ।
तलवार संभाल लो, नुपुरों की जंकार के स्थान पर तोपों का गर्जन हो। भूल जाओ राग रंग, याद रखो हमें स्वराज्य लेना है, हमें रणभूमि में मौत से जूझना है। અને જ વખતે તાત્યા કહે છે, મહારાણી આપકી જય हो, मैं युद्ध के लिए तैयार होकर आया हूं। लक्ष्मीबाई कहे छे, जानती हूं, लेकिन सेनापति इस बार यह याद रखना कि यदि दुर्भाग्य से विजय न मिल सकी तो तुम्हें सेना और सामग्री दोनों को दुश्मन के घेरे से निकाल कर ले जाना है, ऐसा ही होगा। लक्ष्मीबाई कहे छे, तात्या मेरा मन कहता है यह मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है, जीत हो या हार मुझे किसी बात की चिंता नहीं, चिंता केवल इस बात की है हमारी वीरता कलंकित न होने पाए। तात्या कैसे? भाई साहब, वीरता आपको पाकर धन्य है, आपके रहते कलंक हमारी छाया को भी नहीं छू सकेगा, आज्ञा दीजिए, प्रणाम। लक्ष्मीबाई कहते, प्रणाम तात्या, मैं सीधी युद्ध भूमि में जा रही हूं, देर न लगाना। तात्या चला जाता है। मुंदर कहते, सरकार आज मैं बराबर आपके साथ रहूंगी। जूही कहते, और मैं तोपखाना संभालू। लक्ष्मीबाई कहते, और हम सब मिलकर या तो स्वराज्य प्राप्त करते रहेंगे या स्वराज्य की नींव का पत्थर बनेंगे। हर हर महादेव। तीनों हर हर महादेव का उद्घोष करती है। युद्ध भूमि में यही उद्घोष उभर कर आता है जो मंच पर प्रकाश के धुंधलाते न धुंधलाते सब कहीं छा जाता है। फिर धीरे धीरे शांति छाने लगती है, प्रकाश उभरने लगता है और पृष्ठभूमि में गीता पाठ का स्वर उठता है। तो विचार करो कि અહીંયા સ્ત્રીઓએ કેવી ભૂમિકા ભજવી। લક્ષ્મીબાઈએ અંતિમ ક્ષણ સુધી કહ્યું કે હું યુદ્ધ કરીશ, ભલે મરું પણ હું મારી ઝાંસી જીવતે જીવી આપું। એની વાત સુંદર દ્વારા રઘુનાથ રાવ તો માત્ર કહેવાનું પાત્ર છે, તાત્યા દ્વારા લક્ષ્મીબાઈ દ્વારા અહીં રજૂ થાય છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારે તમારા સ્વાધ્યાયના ચોપડામાં શબ્દાર્થને ટિપ્પણી લખવાના છે ને મુહાવરે ખાસ લખવાના છે। આ મુહાવરે એટલા માટે કે તમારું શબ્દભંડોળ વળે, એટલે તમારે નવમાના તમારા સ્વાધ્યાયના ચોપડામાં મુહાવરા લખવાના છે। એ ઉપરાંત તમારે 1-2 વાક્યમાં ઉત્તર આપો, એમાં 1 થી 5 પ્રશ્નો ટૂંકા જે અગત્યના છે એ ખાસ લખવાના છે। 1 થી 5 પ્રશ્નો। એના પછી સીધા અહીંયા પ્રશ્ન નંબર 4 ખાલી જગ્યા, પ્રશ્ન નંબર 5 શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ, પ્રશ્ન નંબર 6 અને પ્રશ્ન નંબર 7 આ વ્યાકરણ વિભાગ તમારે લખવાનો છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપણે 5મી કૃતિ સ્વરાજ્ય કી નીવ, જેના લેખક વિષ્ણુ પ્રભાકર, એ અહીં પૂર્ણ કરીએ છીએ અને આવતી વખતે નવી કૃતિ સાથે મળીશું। નમસ્કાર, આભાર।